Okay, friends, let us start our session with our first unit only, Indian Contract Act, General Contracts. Let us start our second chapter based on offer and acceptance. Define offer. Offer, the name other word of offer is proposal. Now we are going to deal with the explain the various essentials for a valid offer. Now, what are the various essentials or conditions or legal rules for a valid contract? That is what we are going to discuss in today's session. Now, friends, we have already discussed based on what are contracts. Contracts हम already पढ़ चुके हैं सर. Contract क्या है आपको याद होगा, अच्छे से याद नहीं है तो प्लीज मेमोराइज करें, घर पे पढ़े. पढ़ना जरूरी है. लास्ट में थोड़ा हेक्टिक लगेगा आपको सर कि एक साथ में इतना सब कैसे पढ़ लूंगा, इसलिए पहले से ही पढ़ते रहें. मैं तो कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहिए, बेटर रहेगा आपके लिए. व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है सर. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट ऐसी एग्रीमेंट जो सर हम लॉफुली चैलेंज कर सकते हैं, विच वी कैन टेक लीगल एक्शंस बेस्ड ऑन दैट एग्रीमेंट, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स है, अगर वो फुलफिल कर देते हैं तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. जैसे अभी मैंने मानसी से क्वेश्चन पूछा था तो मानसी ने जवाब दिया था दैट देर आर अप्रॉक्स 11 essentials फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10. और उन्होंने लिस्ट आउट कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम पार्टीज टिल लीगल फॉर्मेलिटीज. हर एक एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं सर आज, वो है वैलिड ऑफर कब बनेगा. वैलिड ऑफर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट. फॉर फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट, आपको एग्रीमेंट का फॉर्मूला याद ही होगा सर. क्या था एग्रीमेंट का फॉर्मूला सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. तो उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. इन दोनों की चर्चा होगी. देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज टू एन एग्रीमेंट फॉर मेकिंग एन ऑफर एंड other accepting that particular offer. That is very, very important. Now, as we all know, sir, offer and its acceptance are the commencing points. These are the commencing points for making an agreement. These are the initial points, starting points for making a valid agreement. In other words, if you want to understand, sir, it's very easy that offer is what is the first step for making a valid contract, valid agreement. One person makes an offer while the other person makes its acceptance. Then only valid offer can be completed, sir. Now let us see the definition, the most important part. What exactly is offer? The other name of offer is proposal. So let us try to understand that what exactly is the definition of proposal. Now, as per section 2A of Indian Contract Act, which states what exactly is offer. When one person signifies to another, signifies, you can see the red words. I have converted the words into red. They are very, very important in the definition. Now, what exactly signifies means communicates. When one person communicates, don't change the words while you are writing the answers. Huh? This is definition as per law. You are not supposed to change the words in the definition. Do not ever try to do it. Follow what exactly the definitions are given as per the section. When one person signifies, means communicates to another, what he wants to communicate is willingness. What is willingness? The other word of willingness is desire. His will, willingness. Willingness in the sense what? To do or to abstain from doing. To do or to abstain from doing means he wants to do something or he don't want to do something. That is with a view to obtaining the assent of that other. What is the intention of that particular person who is making an offer? His intention is very clear that he wants the assent. Assent means consent, permission of that particular other person. For what he wants the consent, the assent, sir, to the act or the abstinence, what he wants to do. As in when I talk about the act, it is a positive act. It is a
positive act. He wants to do something that becomes a positive act. He don't want to do something that is abstinence, becomes a negative act. Okay, he is said to make a proposal. That person who wants to communicate his willingness to another person, that is nothing but a proposal. Communication may be in the sense he wants to do something or he wants to abstain, means he wants to stop another person from doing anything. And why he is doing such an act or abstinence? Sir, in simple words, he wants the consent of the other person. Now, friends, how you can memorize the definition very easily? Just break the definition. Just break the definition into small parts. This is one demonstration how to memorize the definition. If you forget the overall definition, try to make it small parts, small pieces of definition. Just make it simple. When one person signifies to another what? His willingness. His willingness. One person wants to communicate to another what he wants to communicate, his willingness. What about what type of willingness he wants to do? To do or to abstain from doing anything. कुछ करना, कुछ न करना, ऐसी बात वो कहना चाहता है. ऐसा वो क्यों कहता है? Why he wants to do such act or he don't want to do such act? The intention is very clear. He wants to do such act or he don't want to do such act with a view to obtain the assent of that other. Means the other person assent, he wants the assent of the other person, the consent of the other person, the permission of the other person. To such act may be the positive act or abstinence may be the negative act. कुछ करना या कुछ न करने की बात हो रही है, उसके लिए वो क्या चाहता है सर? सामने वाले पर्सन की परमिशन चाहता है, एसेंट चाहता है. तो वो क्या बन जाएगा सर? ही उसने क्या किया सर? व्हाट द एक्ट हैज बीन डन इज नोन एज ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. चलिए अब सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग. व्हाट इज बाइंडिंग सर? कंपल्शन, मैंडेटरी, नेसेसरी एग्रीमेंट विथ अनदर. प्रपोजल offer ऐसी proposal है sir where one person what he is doing, he is trying to enter into the contract with another person and it becomes what sir? Legally binding on that particular person, another person, that he is supposed to perform under the contract as what is promised by one party to another party. Now there are two parties in case of offer. Valid offer के अंदर sir दो parties है. The person who makes the offer is called the offerer. ऑफरर का दूसरा नाम है प्रपोजर या प्रॉमिसर भी कह सकते हैं. द पर्सन हु मेक्स द ऑफर, जिसने ऑफर रखी है, उसे हम किस नाम से जानेंगे सर? ऑफरर के नाम से जानेंगे. हम उसको प्रपोजर भी कह सकते हैं. ऑफर, ऑफरर, प्रपोजल, तो उसको प्रपोजर मान लेंगे. और प्रॉमिसर तीसरा नाम. इनमें से कोई भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं. अदर पर्सन, जिसके सामने ऑफर रखी गई है, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी या प्रपोजी या प्रोमिसी या हम उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी. एग्जाम्पल लिखना चाहिए बीच बीच में, जहां जहां आपको याद आता है. प्लीज राइट डाउन द एग्जाम्पल्स इन द एग्जाम ऑल्सो. लेट्स सी द एग्जाम्पल. राजू ऑफर्स टू सेल हिज बाइक टू श्याम फॉर ₹20,000. तो राजू ने ऑफर रखी है सर. क्या ऑफर रखी है? वो अपनी बाइक बेचना चाहता है. श्याम को कितने अमाउंट में सर? 20,000 में बेचना चाहता है. दिस इज एन ऑफर बाय राजू. ऑफर किसने रखी है सर? राजू. तो राजू कौन हो गया सर? ऑफरर. राजू इज द ऑफरर और यू कैन से द प्रॉमिसर और प्रपोजर. श्याम कौन हुआ सर? श्याम टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड इज द ऑफरी. एंड if he agrees to buy the bike for ₹20,000, he becomes what? He becomes the acceptor or the promisee. अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, मिस्टर श्याम ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, he becomes the acceptor या promisee. एक इंपॉर्टेंट केस लेते हैं सर. बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है. इस केस के बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछ ले. जैसे हमने एक केस देखा था आगे, बल्फर वर्सेस बल्फर. कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते रहेंगे बीच बीच में, मैं जो आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा. जो एग्जाम में पॉसिबल हो तो जरूर लिखिएगा. Let us take one landmark case based on offer. A Carbolic smoke bowl company issued an advertisement that
it would pay pound 100 to anyone who contacts influenza disease. Influenza क्या है सर? Disease. After having used their smoke balls 3 times daily for 2 weeks according to the printed directions. फ्रेंड्स अभी जो पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, वैसे ही ये केस बहुत पुराना है। उस वक्त भी शायद पेंडेमिक सिचुएशन थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो तभी भी एक कंपनी ने कुछ एक मेडिसिन क्रिएट की थी और उन्होंने ऐसा इश्तिहार दिया था, एडवर्टाइजमेंट दिया था कि अगर आप उनकी ये मेडिसिन यूज करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, या इन्फ्लुएंजा अगर आपको हुआ भी है तो वो मिट जाएगा। यू विल गेट रीड ऑफ इन्फ्लुएंजा डिसीज, ऐसा एक एक एडवर्टाइजमेंट किया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। सबसे पहली चीज, ये केस किसके साथ हुआ था? कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, नीचे केस का नाम लिखा हुआ है। 1893 का ये केस है, लैंडमार्क केस है, विच इज बेस्ड ऑन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का ये इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है, बेसिस है। और इस केस को इसीलिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी ने क्या एडवर्टाइजमेंट दिया था कि अगर आपने उनकी प्रिंटेड डायरेक्शन के हिसाब से वो चीज का उपयोग किया, यूज किया, तो आपको इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी, अगर हुई भी है तो मिट जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी उनको पाउंड 100 रुपीज रिफंड देंगे या रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे, यूं समझ लीजिए। चैलेंज किया था, कंपनी ने चैलेंज किया था। लेकिन डायरेक्शन किया था, स्मोक बॉल्स यानी जो मेडिसिन थी, 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स उन्हें यूज करना था एज पर द डायरेक्शन गिवन। जैसा बोला गया है वैसे अगर आप उपयोग करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, या हुई है, विल बी रिमूव्ड, यू कैन गेट रिड फ्रॉम दैट डिसीज। मिसिस कार्लाइल एक कस्टमर है जिन्होंने इसका उपयोग किया, यूज द स्मोक बॉल्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन, बट उन्होंने ये चीज का उपयोग किया, बट लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली शी सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। उसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंजा हुआ, ये बीमारी हुई। तो उन्होंने क्या किया? शी फाइल्ड सूट। सूट क्या है? शायद पहली बार शब्द सुना हो, इसलिए ब्रैकेट में मैंने मीनिंग लिखा है। लीगल एक्शन या लीगल केस करना, यानी आपने केस किया है। मिसिस कार्लाइल ने केस किया है। किसके ऊपर केस किया है सर? कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर केस कर दिया। क्या केस किया? कि उन्होंने इस जो प्रिंटेड डायरेक्शन है इसके हिसाब से यूज किया, फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा बीमारी हुई। तो वो क्या कह रही है? आपने प्रॉमिस किया था पाउंड 100 आप रिवॉर्ड दोगे, पुरस्कार दोगे, इनाम दोगे, प्राइज दोगे, तो आपका ये प्राइज अब मुझे देना पड़ेगा। मैंने डायरेक्शन के हिसाब से भी यूज किया, फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ है। तो जजमेंट किया आया, इट वाज हेल्ड। देखते हैं जजमेंट किया आया, इट वाज हेल्ड। जहां पे भी हेल्ड शब्द यूज किया गया हो वो जजमेंट बताता है सर। इट वाज हेल्ड दैट शी वुड रिसीव द रिवॉर्ड एज सी हैड एक्सेप्टेड द ऑफर बाय कंप्लाइंग विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जो भी टर्म्स ऑफ द ऑफर रखी गई थी एज पर द डायरेक्शन दे आर सपोज टू टेक द मेडिसिन, उन्होंने वैसे लिया, ऐसे यूज किया, फिर भी उन्हें फायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको ये बीमारी हुई। तो उनका अधिकार बनता है दैट शी शुड रिसीव द पुरस्कार, द प्राइज, द रिवॉर्ड। तो उनके फेवर में जजमेंट आया। ठीक है, तो ये लैंडमार्क केस है। उन्होंने जो कंपनी ने जो ऑफर रखी थी उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, उसके हिसाब से उन्होंने उस उनके डायरेक्शन के हिसाब से उसका उपयोग किया। उसके बावजूद भी ये जो टर्म्स ऑफ ऑफर था वो उसका ब्रीच हुआ है। देयर इज अ ब्रीच ऑफ ऑफर, यूं समझ लीजिए। तो वहां पे शी कैन क्लेम फॉर द प्राइस, फॉर द रिवॉर्ड, और उन्होंने उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया, उनको ये प्राइज मिला। Now let us take the essentials, the legal rules for a valid offer. वैलिड ऑफर, ऑफर कैसी होनी चाहिए सर? ऑफर ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ले, ऐसी ऑफर रखनी चाहिए सर। ऑफर आपने काफी सारी ऑफर्स देखी होगी, आप ऑफर फॉलो भी करते होंगे, राइट? आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ऑफर्स भी आ रही होगी, एक पे एक फ्री वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी ऑफर्स है जो आपको बेनिफिट भी देती है। लेकिन ऑफर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑफर ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले। चलिए देखते हैं, एसेंशियल्स पे चलते हैं। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। सर हमने कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के अंदर तीसरा पॉइंट देखा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सेम टू सेम पॉइंट है, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये पॉइंट आपको पता है कि दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए
सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एग्रीमेंट नहीं होनी चाहिए, उस एग्रीमेंट को कन्वर्ट करना इनटू अ वैलिड ऑफर, एन ऑफर दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैसी बातें होनी चाहिए, सोशल इनविटेशन नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक इनविटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है सर तो प्रॉब्लम होगी। मीन्स वो वैलिड ऑफर नहीं बनेगा, ना ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा सर, ये सिचुएशन क्रिएट होगी। एन ऑफर मस्ट बी वन विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ लीगल रिलेशनशिप। ये जरूरी है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए। एन ऑफर मस्ट बी सच दैट व्हेन एक्सेप्टेड इट विल रिजल्ट इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड एक्सेप्टेंस जब उसका होता है ऑफर का, वो ऐसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए और ऑफर भी ऐसी होनी चाहिए कि वो वैलिड अगर कंडीशन वहाँ पे कोई अवेयर नहीं माना जाएगा सर। हाँ, so friends, just a minute. हाँ, okay friends, लेट अस टेक एग्जांपल बेस्ड ऑन सोशल इनविटेशन। कभी कभी क्या होती है, हम सोशल इनविटेशन रख देते हैं एक दूसरे के सामने, छोटी छोटी इनविटेशंस होती है, जैसे डिनर पे बुला लिया, मूवी देखने चलते हैं, चलो पार्टी करते हैं, ये सोशल इनविटेशंस की बातें हो रही है सर। अ मियर सोशल इनविटेशन कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ वैलिड ऑफर। वो वैलिड ऑफर कभी नहीं मानी जाती है, कैन नॉट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वैलिड ऑफर नहीं होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगी, बिकॉज इफ सच एन इन्विटेशन इज एक्सेप्टेड इट विल नॉट गिव राइज टू अ वैलिड लीगल वैलिड और यू कैन से लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। रिलेशनशिप के दूसरे नाम मैंने आपको ब्रैकेट में रखे हुए, वो क्या, इसका मीनिंग क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स, ये भी केस है सर, एक छोटा सा हैदर वर्सेस शेख का केस है, देखते हैं क्या हुआ था। एक्स इनवाइटेड वाई फॉर डिनर। एक्स ने इनवाइट किया वाई को, चल डिनर पे आ जाओ आप। ऑन वाइस फेलियर टू अटेंड, एक्स failed a suit against Y for the price of the non-consumed food। Y को डिनर पे बुलाया, एक्स ने, Y नहीं पहुंच पाया, फेलियर हुआ, he was not able to attend the dinner। एक्स ने क्या किया, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पे केस किया। किस चीज के लिए केस किया सर? किस चीज के लिए केस किया सर? नॉन कंजप्शन ऑफ फूड के लिए केस किया सर। वो वो नहीं चलिए, सो एक बंदा अगर डिनर के लिए नहीं पहुंच पाता है तो क्या अपने फ्रेंड के ऊपर केस करेंगे सर हम? एक बंदा अगर मूवी देखने नहीं पहुंच पाता है तो क्या हम उस पर केस करेंगे सर? ये यहाँ पे कोई भी, ये सोशल इनविटेशन है, सोशल एग्रीमेंट है, यहाँ कभी भी वैलिड ऑफर माना नहीं जाएगा, ये वैलिड ऑफर नहीं होगा सर, इसको ये कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा सर उसी बेसिस पे। So there must be an intention to create a legal relationship between the parties. Let us take the next point. Terms of offer must be certain। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर के अंदर रखी गई है सर, वो सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन यानी कि डेफिनाइट, डेफिनाइट यानी फिक्स्ड, फिक्स्ड टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होना चाहिए। कभी भी उल्टा करे तो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली बंदे ने करना क्या है। ये पॉइंट भी आगे रिपीट हुआ था सेक्शन 10 के अंदर, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग।
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पहले 2 पॉइंट सेम टू सेम वैलिड ऑफर के ही है, यानी सेम पॉइंट्स है, ज़्यादा फर्क नहीं है, सिमिलैरिटी है, दोनों सेम ही है। यानी जो भी ऑफर रखी गई उसकी टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। उल्टा करे तो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, इनडेफिनाइट नहीं होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए एग्जैक्टली बंदे ने करना क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अगर ऐसा नहीं है, इफ द terms and conditions of the offer are not definite, not certain, if they are vague or indefinite, its acceptance cannot create any legal or you can say contractual relationship between the parties। possibility नहीं होगी, वो कभी वैलिड ऑफर नहीं बन पाएगा, उसका एक्सेप्टेंस भी वैलिड नहीं माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। द ऑफर मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था सर कि ऑफर कैसा होना चाहिए सर, जो भी ऑफर रखा जा रहा है वो कैसा होना चाहिए सर। हाँ, इंटेंशन यही होना चाहिए। पहला इंटेंशन क्या होना चाहिए सर, हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा दैट द इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एक बंदा दूसरे बंदे का एसेंट प्राप्त करना चाहता है। कंसेंट, एसेंट को मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या एसेंट का मीनिंग क्या होता है सर, कंसेंट। दूसरे बंदे की परमिशन चाहिए, तभी तो वैलिड ऑफर का वैलिड एक्सेप्टेंस होगा। जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा वो ऑफर दैट ऑफर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। आपने ऑफर रखी है, जब तक उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता सर। इसलिए आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए सर, सामने वाले का कंसेंट लेना है, एसेंट लेना है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आपकी ऑफर ही ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले का कंसेंट आपको मिले। आप ऑफर ऐसी रखोगे कि कंसेंट ना मिले तो सर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए, साथ साथ में आपका इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि कंसेंट लेना है सामने वाले बंदे का। तो ऑफर ऐसी रखो कि कंसेंट इजीली मिल जाए। So when it is made only with a view to disclosing the intention to do something is not an offer। जैसे कि एग्जांपल रखा है, कैजुअल टॉक इज नॉट हेल्ड टू बी एन ऑफर। कैजुअल टॉक को ऑफर नहीं माना गया। कैजुअल टॉक क्या होता है, हम कैजुअल से बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं सर, कि सोचता हूँ अपना मकान बेच दूं, सोचता हूँ अपनी दुकान बेच दूं, सोचता हूँ अपनी वाइफ, नो नो नो, वाइफ थोड़ी बेच सकते हैं सर। तो आप सोचते ही रहोगे कि बेचने वाले भी हो। क्वेश्चन फॉर रुपीज 50 lakhs। हाँ, तो इंटेंशन दिख रहा है, सच में बेचना चाह रहा है। कैसे इंटेंशन क्लियर हुआ सर, जब उसने प्राइस बताई 50 लाख में मैं अपना मकान बेचना चाह रहा हूँ, तो इंटेंशन क्लियर कट है कि हाँ बंदा सीरियस है, मकान बेचना चाहता है। और ये 50 lakhs जब वो बंदा प्राइस रख रहा है, तो शायद उसका इंटेंशन है कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो और सामने वाले का एसेंट भी मिले। अगर उसको प्राइस सही लगेगी, सामने वाले को मकान जचेगा, तो फ्यूचर में खरीदेगा। द अदर पर्सन विल बाय दैट पर्टिकुलर हाउस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोजल में बी। अब थोड़ा टाइप्स ऑफ प्रपोजल पे आ रहे हैं। प्रपोजल में बी मेड ओरल और रिटर्न और बाय कंडक्ट। प्रपोजल कैसा हो सकता है सर, ओरल हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में हो सकता है, या बाय एक्ट या कंडक्ट हो सकता है। वैसे दो तीन प्रकार हो रहे हैं सामने। पहले दो जो है एक्सप्रेस है। ओरल एंड रिटर्न कैसे हैं सर, एक्सप्रेस ऑफर है, या एक्सप्रेस ओरल ऑफर बनेगा, या क्या बनेगा सर, एक्सप्रेस रिटर्न ऑफर बनेगा। यानी एक्सप्रेस ऑफर है पहले दो की हम बात करें तो। और जो आखिरी है बाय कंडक्ट, वो क्या बनेगा सर, इम्प्लाइड ऑफर बनेगा। क्या बनेगा, इम्प्लाइड ऑफर। आपको ये सारे वर्ड्स स्लाइड्स में दिख रहे होंगे दोस्तों, राइट। चलिए, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको, इसीलिए एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं मैंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्रपोजल में बी मेड ओरल। लेट अस सी व्हाट इज एक्सप्रेस ओरल ऑफर। व्हेन एक्स सेज टू वाई, आप मैंने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए उस पर फोकस करना है। सेज टू वाई यानी कह रहा है, बोल रहा है, ओरली वर्बली ही इज स्पीकिंग। एक्स इज स्पीकिंग टू वाई, क्या बोल रहा है, विल यू बाय दिस हाउस फॉर रुपीज 20 lakhs। ऑफर क्या, आप मेरा ये मकान
लाख में खरीदो। तो बंदे ऐसा पूछा है, कहा है क्या बंदा सर एक्सप्रेस, क्या वर्ड यूज किया गया है, राइटिंग, राइट्स टू वाई, लिखा हुआ है, लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, अ लेटर स्टेटिंग दैट विल यू बाय दिस लैंड फॉर 8 lakhs, क्या मेरा ये जमीन का टुकड़ा आप 8 लाख में खरीदना चाहते हो? तो ये क्या बनेगा सर, ये राइटिंग फॉर्मेट में है, एक लेटर फ्रेम किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे सर, इट इज एन एक्सप्रेस रिटर्न ऑफर। आपने ऑफर राइटिंग फॉर्म में लिखा है, ऊपर जो था आपने ऑफर ओरल फॉर्म में लिखा है। और आखिरी जो है एग्जाम्पल सी, GSRTC, a transport company runs a bus on a particular route। इनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, GSRTC क्या है सर, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये अपने बस को एक फिक्स रूट में चलाती है, इट रन्स। तो एक तरीके से क्या हो गया सर, इट्स एन इम्प्लाइड ऑफर बाय कंडक्ट ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर इट्स पैसेंजर। ये जो बस रन कर रही है ये ऑफर है, इम्प्लाइड ऑफर है, किन के लिए ऑफर है सर, पैसेंजर्स के लिए, कि कोई भी पैसेंजर इस ऑफर का लाभ ले सकता है, प्रोवाइडेड वो सही टाइम पे पहुंचे। तो 8 बजे की बस हो फ्रॉम सूरत टू अहमदाबाद, तो आपने 8 बजे तक पहुंच जाना है, या उससे पहले पहुंच जाना है, 8:30 को पहुंचोगे तो बस चली जाएगी, फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी। मीन्स इनका जो रूट है वो फिक्स है, टाइमिंग फिक्स है, इनकी जो ऑफर है वो पब्लिकली फिक्स्ड है, इम्प्लाइड है, यहाँ अपने कंडक्ट से, अपने एक्ट से, ये उनका डेली का काम है, डेली प्रैक्टिस है, यहाँ इम्प्लाइड ऑफर रखी गई है, इट इज एन